the tech visionaries of this panel, Mr. Sankalp Jain, CEO and founder of ScannyMart. Now we have Arvind Mehto, founder of Arvind Folk Gyan. Last one is Vansh Tyagi, founder of Trovix Tech Solution, Campaign Source and Minute Hire. Political, but just before coming here, we all are educated people, and I just got to know that Mr. Dharmendra Pradhan resigned. So a huge congratulations to anyone and everyone who supported that. And it's like a big win in the field of education, and I feel that everyone here has some or the other way has got, one or the other problem just because of education. So moment of celebration, can you please have a huge round of applause for that. On that note, I'd like to welcome the AI and Tech panel. My name is Veera. I'm an independent brand and content consultant. And I'd like to invite Sankalp Jain, CEO and founder ScannyMart, Arvind Mahathur, founder Arvind Folk Gyan, and Vansh Tyagi, director Trovix Tech Solution, Campaign Source and Minute Hire. Can you please have a huge round of applause for the panel? Alright, so before we begin this session, there's this one line that I read recently. It says that there is nothing artificial about artificial intelligence. It's made by humans, it is deployed by humans, and it's used by humans, and it is governed by humans. So anyone and everyone who says that AI हमारी नौकरी खा जाएगा, which is like just another statement, or AI has taken a lot of things, just want to let them know that AI is exactly like internet, and it's never going to take humanity as a perspective. And on that note, my first question to the panel is, if you guys can introduce yourself in one or two lines, and first question you can answer in that itself, which is, what is that one thing that you think that AI has replaced and AI cannot replace? Over to you. So, first of all, about myself, my name is Sankalp Jain, and will you guys be comfortable in Hindi? Yeah, please. So, I'm not a crazy freak, but pretty decent smart in English as well, but I would like to talk in Hindi क्योंकि हिंदी में ज़्यादा फील आता है उसमें. Okay, so जहाँ तक बात है, पहले मेरे बारे में बता दूँ यार, संकल्प जैन is my name. और मैं फाउंडर हूँ ScannyMart का. ScannyMart एक ऑफलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन है. मैं उसको पर्सनली बनाना चाहता हूँ द Amazon ऑफ ऑफलाइन शॉपिंग, क्योंकि हमारा जो विजन है, वी वांट टू मेक ऑफलाइन शॉपिंग एज कन्वीनियंस एज ऑनलाइन शॉपिंग, जिसमें आप कोई भी सुपरमार्ट जैसे बाहर आके किसी भी कोई सुपरमार्ट और आप प्रोडक्ट को स्कैन कर सकते हो, प्रोडक्ट को उठा के स्कैन कर सकते हो, वहीं से ऐप से पेमेंट करने के बाद यू कैन जस्ट स्क्रॉल आउट बाय शोइंग द क्यूआर कोड दैट इज. So it's just like your checkout time will be reduced from 4 minutes to 30 seconds. So very convenient in terms of that. तो अब जहाँ तक बात है जो क्वेश्चन कि AI क्या हमारी जॉब है, मतलब like one thing, कोई एक ऐसी चीज जो आपको लगता है आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, या whatever your knowledge is about AI, one thing AI can replace and one thing AI cannot. What would be? in my business or in general? In general, right now we will have generic perspective and then we move on to the business perspective. See, as you told, it's in the era of internet as well. ठीक है. There were many things like कि यार बहुत सारी जॉब चली जाएगी, बहुत सारा ऐसे उसी होगा. But things evolve. Humans as we are, है ना, we are bound for the evolution. हम लोग हर एक नए टूल को अडॉप्ट करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, and then we carry forward in the next generation, next generation को पास करते हैं. So AI is just like a tool. ठीक है. No doubt. जहाँ तक बात है कि जॉब्स के बारे में जो बात करता हूँ मैं कि AI बहुत सारी फील्ड्स में no doubt it can take over the job, but not exactly the AI. The person who has the good command of AI as a tool, he can take the job. Because मतलब क्या होता है ना, कभी-कभार it's all about efficiency. अगर मैं एक बंदा को हायर कर सकता हूँ, in the salary of 3 people to do the work 10-20 people, why would I hire 10-20 people? That's the whole thing. ठीक है. Companies are laying off people and then hiring because क्यों? Because they want the skilled worker.
They want कि जिस workers को AI efficiently use करना आता है. They want कि यार मेरे जितना भी जो structure है, मेरे जितना भी अगर coding application के बारे में बात करूँ या फिर आपका जितना भी जो legality, मतलब not exactly legality, but coding और आपका जितने भी जो engineering से perspective से जो physical engineering को छोड़ के जो software engineering और different kinds of में आता है, तो उसमें बहुत सारे AI का यूज होता है. There are various coding platform coming out like Emergent and those kind of companies as well. ठीक है, तो AI can take job, but not in a sense कि AI as a full it will take job. The person who uses the best, मतलब the person जो बहुत अच्छी तरीके से उस AI को use कर सकता है, they will be the eating of the job who can. Got it. Thank you so much, Sanfal, for answering this. I'll repeat the question again, and if you could, just give the answer in just 2 or 3 times, because we need to sort of shorten up the session because of the time. I want to understand. My question was one thing. Okay, one thing AI can replace, and one thing AI cannot replace. So, hi everyone. My name is Arvind Mahato, and I'm the founder of Arvind Office. मैंने जो स्टार्टअप स्टार्ट किया था अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, एज इन लाइक स्टार्टिंग स्टार्टअप. मैंने देखा कि कॉलेज में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मोस्टली लिंक्डइन पे एक्टिव है, बट दे नॉट इंपॉर्टेंस ऑफ लिंक्डइन. उनको पता नहीं रहता कि लिंक्डइन का इंपॉर्टेंस क्या है. आई एम फ्रॉम टायर 3 कॉलेज, फ्रॉम टायर 3 ड्यू कॉलेज, एंड मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था कि लिंक्डइन का इंपॉर्टेंस क्या है. लोग लिंक्डइन पे सिर्फ जॉब ढूंढते थे. तो आई गेट इट कि मुझे लगा कि इसको एज ए पर्सन पार्टी टूल्स जो टायर 3 टायर 2 वाले जो स्टूडेंट्स यूज नहीं करते उनको मेरे को इंपॉर्टेंस पहुंचा रहा था. मैं डिफरेंट कॉलेजेस गया, व्हाट्सएप करता है, इंपॉर्टेंस पहुंचाया स्टूडेंट्स तक. तो बेसिकली दिस इज सेगमेंट एंड आई स्टार्ट माय स्टार्टअप. ओके, एंड AI is your question is one thing AI मुझे जितना तो लगता है कि AI जो है ना कि जो टेक्निकल टर्म ऑफ जो स्किल्स आते हैं ना, जैसे आपका टेक्निकल में जो करते हैं या फिर कोडिंग हो गया, वाइट कोड या दिस टाइप ऑफ, आई थिंक मुझे लगता है कि AI रिप्लेस कर देगा एट द लास्ट. बट इट्स कम अबाउट द सॉफ्ट स्किल्स लाइक योर कम्युनिकेशन, योर डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटजी जो होता है वो AI कभी रिप्लेस नहीं कर सकता. तो आई थिंक मुझे जितना तो लगता है कि AI के साथ सॉफ्ट स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. योर मैनेजमेंट, योर कम्युनिकेशन, योर स्ट्रेटजी, ये स्किल्स के साथ कोई AI के साथ ये स्किल्स को डेवलप कर रहा है, वो है सॉफ्ट स्किल्स इन लॉन्ग टर्म. और मुझे जितना तो लगता है सॉफ्ट स्किल को सीखने में बहुत टाइम लगता है. हम हार्ड स्किल्स को 6 months 1 year में अप्रोक्स सीख सकते हैं. मुझे पाइथन सीखना था, 6 months 1 year में सीख लूंगा. बट बिल्ड माय कम्युनिकेशन, मेरे को कम्युनिकेशन को बिल्ड करने में फर्स्ट ईयर में कम्युनिकेशन बिल्ड कर रहा हूं, थर्ड ईयर आ गया, अभी भी उस लेवल का परफेक्शन नहीं है. लॉट ऑफ पीपल दे सैक्रिफाइस. तो AI कैन नॉट रिप्लेस द जॉब, बट AI के साथ जो अपने आप को डेवलप नहीं कर रहा, they not develop their soft skill in the long term, शायद उसके लिए AI खतरा है, जॉब ले सकता है. I think पिछले 1 year में टेक इतना आगे बढ़ चुका है कि बहुत सारे ऐसे टेक जॉब्स हैं जो AI रिप्लेस कर दिए. एंड माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आप देख रहे होंगे कितने ले ऑफ हो चुके हैं ड्यू टू शायद वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए या फिर वो AI के साथ अपने सॉफ्ट स्किल को डेवलप नहीं कर पाए, इस वजह से वो रिप्लेस हो चुके हैं. तो इसी वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट टेक के वो एमबीए की तरफ जाते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स की तरफ जाते हैं. इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम. एंड आई थिंक मुझे लगता है कि सॉफ्ट स्किल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू गेटिंग इनटू द टॉप फॉर्म या फिर कुछ भी कर रहे हो. AI के साथ सॉफ्ट स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. योर कम्युनिकेशन, योर डिसीजन मेकिंग, योर स्ट्रेटजी थिंकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू कम थ्रू योर AI. एंड AI के साथ ये हम सीखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा. Alright, thank you so much, Arvind. Before I move on to Vansh, I'd like to ask from you, because you spoke about soft skills a lot, right? And I agree to you that soft skill is something that AI cannot replace for sure. What are those 1, 2, or 3 soft skills that people in this room should be aware of? That I mean, they should have that particular soft skill in order to, not be replaceable by AI, or in general. Okay.
फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक मुझे लगता है कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कम्युनिकेशन बेटर नहीं है तो लाइक मैं बहुत सारे ऐसे डेवलपर को देखा हूँ बहुत अच्छा वो डेवलप कर लेते हैं कोई वेबसाइट है बट वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते तो लॉन्ग टर्म में वो अच्छे कमा लेंगे बट इट्स लाइक लॉन्ग टर्म में कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो अभी कॉलेज में स्पेशली लाइक कॉलेज वालों के लिए तो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट सॉफ्ट स्किल जो कभी भी एआई रिप्लेस नहीं करने वाला। अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि एआई टूल्स आ चुके हैं, एआई कंटेंट क्रिएटर आ चुके हैं, बट एआई कंटेंट क्रिएटर कभी भी ह्यूमन बीइंग का कंपेयर नहीं कर सकता। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी डिफरेंट, वो आपको डेवलप करना चाहिए। दूसरा डिसीजन मेकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल, क्योंकि राइट डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन फ्यूचर लॉट ऑफ पीपल मैं देख रहा हूँ कि जो टेक में होते हैं फिर वो कंसल्टेंट होते हैं, तो यू वांट टू बिकम ए कंसल्टेंट इन फ्यूचर। डिसीजन मेकिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो हमें सीखना चाहिए और डिसीजन मेकिंग सीखने में बहुत टाइम लगता है। एक राइट डिसीजन लेना किसी टॉपिक को लेके या फिर किसी पर्टिकुलर चीज को लेके आपको एक समझना होगा कि उसमें बहुत लंबा जर्नी लगता है। तो डिसीजन मेकिंग इज नॉट ए वेरी इजी, तो इसके बारे में सीखना चाहिए। और थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। और प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो हर किसी को सीखना चाहिए, चाहे आप डेवलपर हो, आप नॉन इंजीनियर, आप कंसल्टेंट हो, आप कुछ भी कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। और लोगों को सीखने में बहुत टाइम लगेगा। रासमानी आई थिंक वो एक पॉडकास्ट शो कर रहे थे, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग को सीखने में अप्रोच टेरी अलग है, इट्स नॉट ए वेरी इजी। तो उसको सीखने के लिए आपको अपने आप को देखना पड़ेगा कि आप किसमें कैपेबल हो, कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको उसमें डेप्थ में जाओ। लोग क्या करते हैं बेसिकली, आई एम ए नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड एंड लाइक जैसे मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है, ठीक है, अब लोग क्या करते हैं डिजिटल मार्केटिंग को डेप्थ में सीखते हैं, बट उसके अलावा जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो गया, स्ट्रेटेजी आपका, फिर आपका दूसरा जो टेक का साइड होता है, लोग उस पे नहीं सीखते। लोग डिजिटल मार्केटिंग में डेप्थ में जाते हैं, बट आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो उसमें डेप्थ में जाओ, बट बाकी जो चीजें हैं उसमें आपको नॉलेज होना चाहिए, 40 to 50%, 60% नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड आपको स्टार्टअप कर रहे हो, कोई भी फील्ड में जा रहे हो, नॉलेज यदि नहीं होगा तो फिर आप उस चीज में नहीं कर पाओगे बेटर। You are a consultant in McKinsey, one of my seniors consultant in McKinsey, उसको क्लाउड भी आता है, उसको ChatGPT भी प्रॉपर यूज करना आता है, उसको इनोवेशन में आता है, सब आता है। एज एन कंसल्टेंट बहुत लोग बोले कि नॉन टेक्निकल का बंदा क्यों टेक सीखेगा, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई नॉन टेक्निकल में है उसको टेक सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डेप्थ नॉलेज तो उसको है उस फील्ड में, बट बाकी फील्ड में भी उसको 40 to 50% नॉलेज है ताकि उस चीज को बेटर वे में कर पाए। It's a very important. Alright. Thank you so much, Arvind. Moving on to Vansh, the same question to you. One thing that you think AI can and cannot replace, and if you could please keep the answer to yourself. Yeah, thanks. Hey, hi everyone. This is Vansh Tyagi, founder and CEO of Campaigning Source Private Limited, Product Tech Solutions in Unit. So basically, the question is very simple, and दोनों ने आंसर दिया काफी अच्छा है, totally agree with that. But अगर इसको एक crisp language में बात करें, the thing is कि AI सब कुछ रिप्लेस कर सकता है अपार्ट फ्रॉम दी लेबर। एंड अगर हम बात करें इसको नहीं रिप्लेस कर सकता तो वो लेबर वर्क है। अगर मैं इनका नहीं बात करूँ तो AI उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। सो जो भी लेबर काइंड ऑफ जॉब है वो रिप्लेसेबल नहीं है। द सेकंड थिंग इज कि इसको रिप्लेस कर सकता है द पर्सन हु इज नॉट एडेप्टिंग। अगर वो खुद को टेक्नोलॉजी एंड टूल्स के साथ में एडेप्ट नहीं कर रहे हैं सो इट्स वेरी इजी टू रिप्लेस। आज के डेट में अगर बात करें डिजाइनर्स, कंटेंट राइटर्स, ये सारी जॉब्स ऐसी जो रिप्लेस हो गई है एंड रिप्लेस वही हुआ है जिसने खुद को एडेप्ट नहीं किया इस चीज के अकॉर्डिंग। लाइक किसी को ChatGPT नहीं आ रहा है, किसी को Gemini नहीं आ रहा है, Claude नहीं आ रहा है, सो इट्स टोटली इजी टू रिप्लेस दिस काइंड ऑफ गाइस। बट अगर वो टूल्स को लेके टोटली एडेप्टिव है सो नथिंग टू डू विद AI। Alright, thank you so much, Vansh. Now moving on to business perspective of your individual businesses. We'll again keep the answer, please keep it crisp so that I can ask more questions from you and keep the audience interactive. My first question to you is that in your business, what is that one thing that you are doing right now which AI, मतलब बिना AI के आप कर ही नहीं सकते और आप आगे भी नहीं कर सकते हो?
what is something that AI has a very, very important role in your business? सो बेसिकली अगर हम एआई की बात करें वैसे एक चीज़ काफ़ी अच्छी तरह से रिजोल्व की है जिसकी वजह से आज हम प्रोटेस्ट भी देते हैं लाइक स्टूडेंट के ऊपर लाठी चार्ज भी हो रहे हैं मार्केट के अंदर सो फेयरनेस जो एआई की डिसीजन मेकिंग पावर है दैट इज टोटली फेयर अगर फॉर एग्जांपल हमने एक टेस्ट दिया ठीक है एंड आई एम द डिसीजन मेकर एक यू दैट पर्टिकुलर रिजल्ट मेरे को रिजल्ट देना है सभी को कि किसने कितना अच्छा आंसर दिया सो मैं उसके अंदर अपने अकॉर्डिंग मार्क्स दे सकता हूँ ठीक है आई कैन बी बायस्ड बट अगर फेयरनेस की बात करें तो दैट इज टोटली रिलेटेड टू एआई एंड अगर हमारे बिजनेस की बात करें मेरा प्रोडक्ट कोड मिनट है जो कि कैंपस हायरिंग पे काम करता है एंड कैंपस हायरिंग एक ऐसी चीज है जिसके अंदर अगर प्रॉपर्ली एनालिसिस ना हो प्रॉपर रिजल्ट ना मिले स्किल्स बेस्ड पे तो उस पर्सन को आज नहीं तो 6 महीने बाद जॉब से निकाला जाएगा रिप्लेस कर दिया जाएगा बट एआई की फेयरनेस इज दैट मच गुड कि वो स्किल सेट जॉब के अकॉर्डिंग मैच करके आपको एक अच्छा कैंडिडेट निकाल देता है सो दैट इज द Arvind, same question to you. And before we move forward, the audience at the back, may I please have your attention because it's a very beautiful discussion going on. I'm sure everyone uses AI right now, and I'd love to have you guys here so that you guys can ask more and more questions related to the same. We can have this chit chat round and networking event post the event, so we do have time, ample time for that. So moving on further, the same question to you. What is that one thing that AI is solving for you, which without AI आप नहीं कर सकते? Okay. First of all, ideas like जब मैं कोई content लिखता हूँ, when I post on LinkedIn, ideas मैं ऐसे use करता हूँ definitely और मैं recommend भी ये करूँगा कि ideas आप find कर रहे हो तो AI use करना चाहिए. Basically, and when I find my idea, मुझे content कैसे लिखना है, उसको कैसे post करना है, तो वो ideas में Claude का use करता हूँ, ChatGPT use करता हूँ, and मैं लोगों को ये बताऊँगा कि like mostly लोग एक tool use करता है, using 4 to 5 tools. आपको पता होना चाहिए कौन सा tool better होगा, and सब tool आपको एक बार try करना चाहिए अपना ideas. Building like में Microsoft Copilot use कर लिया, Claude use कर लिया, ChatGPT use कर लिया. तो सबके सेगमेंट्स अलग होते हैं, सबके आइडियाज अलग होता है. आप देखो कि कौन सा कहाँ पे कौन सा बेस्ट हो रहा है, कौन सा ChatGPT बेस्ट है या Claude बेस्ट. तो सबके आइडियाज सबके फॉर्मेट अलग अलग होते हैं. एंड एक बार सबको पता होना चाहिए कौन सा टूल कैसे काम करता है, सेगमेंट्स कैसे वर्क करते हैं, उसका राइट टू स्टेटमेंट क्या होता है, उसका राइटिंग फॉर्मेट्स क्या होता है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यदि मैं क्लाउड से कोई भी हुक यूज कर रहा हूं, अपने पोस्ट के लिए या फिर कोई भी यूज कर रहा है बिल्डर पर्सन कार्ड, उसके हुक्स लिखने के सेगमेंट्स अलग होंगे, ChatGPT के अलग होंगे, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के अलग होंगे. तो सब एक एक टाइम सेगमेंट्स दे के यूज करना चाहिए उससे, ताकि बेटर वे में हम उसको पोस्ट कर सकें. लोग क्या करते हैं, ChatGPT यूज करते हैं यार. लाइक WhatsApp में एक आता है मेटा, उसको यूज करना चाहिए. मेटा इज फार क्लाउड और मेटा एक ही सेगमेंट में वर्क करते हैं. That's the unique thing I can use on my content post. Alright, thank you so much, Arvind. Moving on to Sankal. Same question to you again. One thing in your business that you think कि AI replace नहीं कर सकता है और आगे भी नहीं करेगा और AI के बिना वो आपका काम हो ही नहीं सकता. Okay. So first of all, I would like to answer that crisp and thing of your previous question. One thing AI can't replace is that one of the person told us instinctive thinking, which AI, no matter what AI can't replace. Humans are built with instinct, and one thing AI can replace is logical decision making. Because if you give enough amount of data to AI will come to a conclusion with based amount of data. But with the instinctive decision, AI will be like, what the hell are you doing? Okay. So, and moving forward with your another question, कि यार मेरा प्रोडक्ट ही पूरा AI में बना हुआ है, तो मैं उसमें क्या ही बोलूँगा, मेरा बिजनेस ही नहीं चलेगा बिना AI के. बिकॉज क्योंकि मेरे दो कोर फीचर्स अभी के डेट में मेरे AI से यूज होते हैं. फर्स्ट कोर फीचर है तुम्हारा AI बेस्ड आइटम रिकग्निशन. फॉर एग्जांपल कैन आई हैव दिस प्रोडक्ट have a barcode, I don't know that this is the name. Again, most of the product have a that's for the product information.
So most product have a barcode. आपके सामने अगर grains का you have something, so you will see कि वहाँ पे barcode है. But कभी-कभी क्या होता है ना, yeah, something like that. But कभी-कभी क्या होता है कि हमें barcode खोजने में ही 50 घंटे लग जाते हैं, तो it ruins the customer experience. So मैं अपने system में integrate करके रखा हुआ है, you don't need a barcode. आप direct बस product दिखाओ, AI will be able to recognize and it can search through the database कि कौन सा product आता है. It is not a shop क्योंकि FMCG store में चोरियां ठीक है मैंने खुद किया अपने ही स्टोर में और पापा से गाली भी मिली है बट श्रिंकेज इज अनदर प्रॉब्लम जिसके लिए हम लोगों ने एक एआई बेस्ड मॉडल हम लोगों ने एक्सिस्टिंग इंस्टीट्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर में लॉन्च करने का प्लान किया जिससे क्या होगा कि कोई भी अगर चोरी भी करेगा ना ऐसे कुछ जब पॉकेट में डालेगा भी तो वो फ्लैग कर देगा और सीधे आपके पास 3-4 लोग आ जाएंगे सर आप चोरी क्यों करते हैं दैट्स इट All right. My, another segment of this question to you is, your toughest customer is the kirana wale bhaiya who, who still trusts his register more. So how are you winning him? How are you convincing him? Because अभी भी उनको convince करना, उनको digitalize करना, उनके पास तक ये चीज पहुंचाना is very difficult. So what is that one or two things that you're doing to help them use the product or even do it in future? First of all, I would like to clarify कि अभी हम लोग यहाँ targeting किराना अभी भी targeting the modern store और जहाँ पे बात है modern store की अगेन वहाँ पे भी वही क्वेश्चन आता है जो आपने पूछा कि वो लोग कैसे अडॉप्ट करते हैं वो अभी भी मतलब अपने existing system को ज़्यादा फॉलो करता है तो मैं सिर्फ एक स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ मैं आपके सामने जाऊँगा आपको मैं डाल दूँगा मैं बोलूँगा कि आपका ब्लिंकिट मार्केट खा जाएगा आपको सही बात तो फिर मैं बोलता हूँ कि यार मेरा सोल्यूशन लगाओ आपका मार्केट ढूंढना होगा एंड दे आर लाइक कि कैसे सो मैं उनको अपना पूरा स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि मेरे थ्रू कस्टमर आएंगे आपका श्रिंकिंग बचेगा एवरी अदर थिंग आपका कस्टमर एक्सपीरियंस ना होगा देयर विल बी कस्टमर रिपीट रेट और मेरे एप्लीकेशन पे यू कैन गो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों शॉपिंग का एक मेथड यूज ओवरऑल आपका कस्टमर एक्सपीरियंस ना होगा ओवरऑल आपके कस्टमर ज्यादा आएंगे रिटेंशन बढ़ेगी तो दे लाइक यार सही बात हो रहा है एंड इन द सेगमेंट इन माय सेगमेंट एवरीवन इज लारा तो उनको कुछ नहीं समझ आता उनको बोल दो कि टेक्नोलॉजी बताऊंगा उनको टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आएगी उनको सिर्फ ये बोलना कि भैया मैं आपका धंधा 1 करोड़ से 2 करोड़ एंड दैट्स हाउ दे लर्न कि हां ओके ठीक है ये मतलब कुछ बात कर रहा है देन द अदर You mentioned in one of your lines earlier that you reduced billing time from 4 minutes to 30 seconds. So how do you see offline shopping evolving in India's retail sector? ऑफलाइन शॉपिंग इंडिया रिटेल सेगमेंट का फ्यूचर ही स्कैनिंग मार्ट से स्टार्ट बहुत लोगों ने मेरे को बोला कि यार स्कैनिंग मार्ट आइडिया अच्छा है एग्जीक्यूशन इज वेरी टफ है ना and many of the founders many of the company failed so तुम ऐसा क्या वो कर लोगे कि जो वो लोग नहीं करता so मैंने बोला कि मेरा एक ही जवाब है मैं बोलता हूँ कि सर मैं आपको कोई जवाब मैं करेक्ट दिखाऊंगा ना so my answer to those my answer will be कि future for the retail lies in क्योंकि Gen Z as a retail उनके पास इतना पेशेंस नहीं है ठीक है आजकल की जो जनरेशन आई है आगे जाके बड़ी शॉपिंग करना स्टार्ट करेंगे ठीक है और मेजॉरिटी क्विक कॉमर्स ऑनलाइन वगैरह में सीन आपके साथ ही होता है कि कभी-कभार यू गेट द डैमेज प्रोडक्ट कभी मैंने अभी हाल ही में कोई रील देखी कि वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर वाज टेलिंग कि यार जेप्टो से मैंने ये मंगाया ये दे दिया और उसमें भी एक्सपायर हो गई आई वाज लाइक क्या चीज चल रहा है तो माय एजेंडा इज लोकल ट्रस्ट विद योर कन्वीनियंस 30 सेकंड्स ऑफ ऑफलाइन शॉपिंग मतलब आप ज़ूडियो भी चले जाओ ज़्यादा भी चले जाओ आप आगे जाके अभी इनिशियली तो नहीं आगे जाके आप ज़ूडियो ज़्यादा भी चले जाओ आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन में बस स्कैन करना है पे करना है एग्जिट करना है ये इट विल बिकम अ हैबिट फॉर्मेशन इन द नियर फ्यूचर और फिर उसके बाद लोग काउंटर तो भूल ही जाएंगे काउंटर विल बी सेट इन म्यूजिक कि हाँ ये टाइम पे ऐसा चल सकता है Alright, thank you so much, Santhal. Moving on to Arvind. Arvind, you mentioned about AI, you mentioned about personal branding, you mentioned about using AI in the right manner कि वो replace ना कर पाए हमारे human language को या instincts को. I want to ask this that right now, if I scroll LinkedIn,
every other LinkedIn post I see is very generic, right? Very generic. हर कोई I'm honest with that. बहुत घिसी पिटी लैंग्वेज हो गई है, जो कि बहुत ही predictable है. And audience का attention span बहुत कम हो गया इस चीज को लेकर. So what are the few tips? What are the few things that you would suggest as a personal brand expert that will help the audience to not have generic posts that can help them write better using AI? Of course, as you mentioned that you use AI, be it in terms of generating ideas or books or whatever it is. What are some tips and tricks to do that? I'm sure the audience will also relate. Before moving further, I would want to know from the audience, how many of you are doing personal branding right now on LinkedIn or on YouTube? And do you feel that हमारे scripts और हमारे posts बहुत generic हो जाते हैं? Can have more responses, guys. थोड़ा सा active हो के हम अभी हमने नाश्ता किया है, थोड़ा सा हम active हो सकते हैं. दरअसल लंच करने के बाद थोड़ा Okay. I'll go with you, please. Yeah. इससे राइट जब कंटेंट की आइडिया दिमाग में आती है ना, तो आप कंटेंट लिख रहे हो. जैसे मान लो एग्जांपल कि आपने कहीं आप इवेंट में एग्जांपल इस तरह आप गूगल करोगे कोई इवेंट हो, ठीक है, तो जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना लोग, पहले डायरेक्ट एआई से लिखवा रहे थे कि भाई कंटेंट एआई लिखो. सर बिगेशन कि आप कंटेंट को प्रॉपर लिखो, आप अपना एक्सपीरियंस लिखो पहले. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग क्या गलती इसमें लोग करते हैं कि लोग एआई से सब कुछ लिखवाते हैं. एआई इज हेल्प टू राइट. एआई उस लेवल का नहीं लिख सकता जो ह्यूमन माइंड में जो आ रहा है. आप एआई को प्रॉम्प्ट देके उस लेवल पर लिखा सकते हो, बट वो एआई जनरेटेड ही लगेगा. लाइक लिंक्डइन को समझ आ जाता है वो चीज कि एआई जनरेटेड है. कि लोग राइटिंग की जो हैबिट है ना, एआई आने के बाद लोगों का हट चुका है कि आप लिखो पहले. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओनली वन थिंग, नॉट टिप्स एंड ट्रिक्स, ओनली वन थिंग, राइट. अब मैं किसी को बोलूंगा कि किताब लिख लो अपना, इट्स अ वेरी चैलेंज, वेरी डिफिकल्ट. किताब लिखना इतना आसान नहीं है. लोग एआई का यूज कर रहे हैं किताब लिखने में भी. तो बट आप एआई स्पेसिफिक यूज करो कि हाँ यदि मैंने पोस्ट लिख दिया, कहीं ग्रामर एरर आ रहा है, वो आप एआई यूज कर सकते हो. आप ये यूज नहीं कर सकते कि लाइक एआई से लिखवा ले. बट हाँ डेफिनेटली कि आप जब कोई पर्टिकुलर पोस्ट लिख रहे हो, उस पोस्ट का या आप इवेंट में जा रहे हो, दिस द बिग एजेंडा ऑफ दिस इवेंट, और उस इवेंट का पर्पस क्या था वो बुक में यूज कर सकते हो. उसके लिए डेफिनेटली आप एआई यूज करो. बट राइटिंग इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोई बहुत बड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है. कोई आपको बता रहा है कि ये टिप्स ले लो, ये टिप्स ट्रिक्स. नो, सोशल मीडिया इज वेरी वेरी डिफरेंट. मैं बोलूंगा कि आप जो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो, यू पोस्ट समथिंग योर रियल लाइफ कंटेंट एंड राइट इन योरसेल्फ. जब तक आप लिखोगे नहीं उससे कुछ नहीं होगा. यदि मैं YouTube पे भी कंटेंट बना रहा हूं तो कंटेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंटेंट सेल्फ पब्लिश करो, खुद करो. आप बहुत सारे लोग एआई यूज करते हैं, डेफिनेटली एआई इज हेल्पफुल, बट सेल्फ कंटेंट बहुत डिफरेंट होता है. यदि मैं कोई स्क्रिप्टेड वीडियो या फिर मैं वीडियोस फॉर्मेट यूज कर रहा हूं, लाइक बहुत सारे लोग आप देखेंगे जो वीडियोस फॉर्मेट यूज करते हैं, उसमें उनका वॉइस जाता है. वो चैनल जब कोई लड़का यदि वो वीडियो शो करके बना रहा था, फेस दिखा रहा था, वेरी हाई चांसेस है कि वो ज्यादा ग्रो करेगा क्योंकि सेल्फ कंटेंट बना रहा है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल लोगों का लिखने का जो तरीका है ना बदल चुका है. लोग एआई से लिखवा रहे हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे लिखवाओ, बट सेल्फ कंटेंट अभी भी बहुत ज्यादा चल रहा है. रिसेंटली बुक माय आई पब्लिश माय बुक और मैंने खुद से लिखा, बस एआई से बस मैंने ग्रामर एरर्स को उस पे डेवलप किया. आप ग्रामर एरर के लिए यूज करो, पूरा लिखवाओ मत एआई से. लोग अभी भी एआई के लिए, बट आई रिकमेंड कि जब तक सेल्फ कंटेंट पब्लिश नहीं करोगे, खुद से नहीं लिखोगे, खुद से दिमाग में आइडियाज नहीं आएगा, तो तब तक एआई कुछ काम आने वाला नहीं है. यूजिंग एआई फॉर द बुक पर्पस. आप बुक यूज करो, उसमें बुक्स के जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं वो देखो कि हाँ ऐसे बुक होता है. यूजिंग फॉर द रैपिड टेक्स्ट, जिसमें आप टेक्स्ट यूज कर सकते हो बेसिकली. बट सेल्फ कंटेंट सेल्फ आप खुद से जब लिखते हो तो आपके अंदर वो ब्रेन आता पब्लिश कर पाते हो. अभी भी लोग जैसे डायरी में लिखना बंद कर दिए. डायरी से जो पहले लगाव था लोगों का वो 4-5 साल पहले, इससे वेरी इंपॉर्टेंट, इससे लिखना बहुत जरूरी है. इट्स नॉट अ वेरी बिग टास्क.
कोई टिप्स एंड ट्रिक्स ये खुद से लिखो एंड यूजिंग एआई फॉर द बुक पर्पस. All right. Thank you so much, Arvind. So basically, what he's saying is, in short and crisp, कि दिमाग चलाओ, फिर उसके बाद मशीन चलाओ, right? Moving on to one. With Minute Hire, you are in the middle of a real mess where people are mass applying to jobs with AI written resumes, right? And it just gets turned off by the HR. Are you cutting through the noise or adding to it? On the contrary, how does your platform simplify corporate hiring, and what role does AI or technology plays in it? So basically, when I started, I was in 11, and उस टाइम पे AI का इतना ज़्यादा boom नहीं था. जब मैं 11 पे था तो ChatGPT भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था मार्केट में. एंड उस टाइम पे मैंने टैग की आइडेंटिटी. सो बेसिकली मैंने टैग है क्या, मैं आपको एक छोटी सी ब्रीफ दे देता हूँ बस. So Minute is India's first campus placement platform. अभी तक प्लेसमेंट कैसे चलती है कि HR आप सभी के कॉलेज में विजिट करती है, वन-ऑन-वन इंटरव्यू एंड मल्टीपल राउंड ऑफ सॉर्टिंग्स एंड वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ स्टूडेंट्स एंड HR को. सो इतना सारा प्रोसेस होने के बाद, हजारों बच्चे स्क्रीनिंग होने के बाद पता चलता है कि 7 बच्चे हायर हुए हैं और इसमें 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम चला गया आपका. सो बेसिकली Minute प्लेटफॉर्म क्या करता है कि आपकी पूरी प्रोफाइलिंग वहाँ पे बिल्ड हो जाती है एंड HR की जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसको आपकी प्रोफाइलिंग के साथ मैच करते हैं हम लोग. एंड एक प्रॉपर सॉर्टिंग, एक एग्जाम जो आपका HR बलून में लेने वाली थी वो हजारों बच्चों में एक साथ हो जाता है ओवर द प्लेटफॉर्म इनटू द कॉलेज रूम्स, क्लासरूम्स. सो उससे क्या होता है कि HR जो बलून स्क्रीनिंग करने वाली थी एंड मे बी वो एक बायस या एक अनवेरिफाइड रिजल्ट्स हो सकते थे हायरिंग के, जिसके बारे में लोग देखने को मिलती है मार्केट में. सो उसको हम पूरी तरह से बाईपास कर देते हैं. जो आपकी जो जेडी है उसको बच्चे की स्किल्स के साथ मैच करते हैं. अकॉर्डिंगली सबके टेस्ट अलाइन होते हैं एंड ये इनटू आवर्स हम लोग 1000 बच्चों को स्क्रीन करके जो बेंगलुरु के अंदर बैठी हुई कंपनी है वो गाजियाबाद के कॉलेज के अंदर उसको आने की भी नहीं पड़ती, बच्चा हायर हो जाता है. सो दैट्स द थिंग. बेसिकली अभी क्या होता है कि ऐसा नहीं है मार्केट के अंदर जॉब्स नहीं है, मार्केट के अंदर हजारों लाखों जॉब्स पड़े पड़े हैं. द थिंग इज कि वो जो टेक जोन बेंगलुरु के अंदर है, मुंबई के अंदर है, उड़ीसा के अंदर है, वो गाजियाबाद के अंदर नहीं है. गाजियाबाद के अंदर जो नोएडा है वो बिहार के अंदर नहीं है. तो द थिंग इज कि बिहार का जो बच्चा है या फिर बागपत का जो बच्चा है, जो टियर 3 एरियाज का बच्चा है जिनको जॉब की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जो बच्चा यहाँ पे आके सोचता है गाजियाबाद के अंदर कि एक मिडिल क्लास फैमिली से एक अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन लेगा, बीटेक कंप्लीट करेगा, फिर उसकी जॉब मिल जाएगी, एक्सटेंडेड कोर्स कंप्लीट करेगा, उसकी जॉब मिल जाएगी. बट द थिंग इज होता क्या है कि वो जो कंपनी किसी टेक जोन में बैठी हुई है वो कॉलेज भी विजिट नहीं करती है तो उसको जॉब नहीं मिलती है. एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ द मार्केट. आज की डेट में 90% अनएम्प्लॉयड बच्चे निकलते हैं कॉलेज के अंदर. एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज कि वो जॉब उसके कॉलेज तक नहीं आ पा रही है जो मार्केट में अवेलेबल है. सो एचआरस का भी यही इशू होता है कि वो बेंगलोर से गाजियाबाद आके हायरिंग नहीं करेंगे ऑब्वियसली. इसके अंदर एक काफी बड़ा बजट इन्वेस्ट होता है उनका. सो हमने इस कैंपस प्लेसमेंट को डिजिटाइज किया है ताकि वहां से यहाँ पे हायरिंग हो पाए अनबायस्ड टोटली एंड स्किल सेट प्रॉपर मैच हो पाए ताकि कंपनीज को लेऑफ का सामना ना करना पड़े. बाद में सामना तो बच्चों को करना पड़ता है पहले. सो लेऑफ्स ना फेस करनी पड़े एंड एक बच्चा एक पर्टिकुलर उस जॉब पे जा पाए जहाँ पे उसका स्किल सेट मैच होता है. Thank you so much, Vansh. Moving on to the audience, do we have any questions for the panelists? Yeah. Can you pass on the mic? Hi, myself Shivansh. I have a question to the panel. So there is a thing AI hallucination. उसके बाद so there is a recent case where a judge वो क्या करता है वो पूरा केस ChatGPT पे डालता है and for the help एक कंसिडर करे उसको जो उससे छूट रही है and AI क्या करता है कि सिमिलर केसेस खुद से बना के उसको दे देता है. सो हेलुसिनेशन से बचने का उस तरीका है क्योंकि अगर हम कुछ भी सर्च करते हैं मैक्सिमम चांस है कि 20-30% हेलुसिनेट करते हैं. बट जिन केसेस में ये कि बस कोई रिजल्ट नहीं है वो मैक्सिमम टाइम पे करता है कि खुद से स्टोरीज बना दे या खुद से प्लॉट बना दे जो कि रियल नहीं होता. तो उससे बचने के लिए हम क्या प्रैक्टिस या कुछ स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं? So basically, it just you have to run the platform. So कुछ टर्म्स होती है प्लेटफॉर्म्स की. लाइक अगर हम ChatGPT से एक केस की पूरी अंडरस्टैंडिंग करा रहे हैं, उस पिटीशन को फाइल कर रहे हैं एंड या फिर जज एक ऑर्डर पास करने वाला है केसेस की रेफरेंस ChatGPT में जाके ढूंढ रहा है. सो ही शुड नो द टर्म्स लाइक एक वर्ड है किल क्रिटिक.
ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक से क्या होता है कि जो भी हेलुसिनेशन जैसी स्टोरीज होती है जो एआई क्रिएट करता है वो उनको बाईपास कर देता है टोटली। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि एक मतलब जज को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो एआई का यूज करके एक केस का ऑर्डर नहीं पास कर सकता है। बट जो टर्म्स होती है डेट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको प्रॉपर्ली टर्म्स पता है कि किस पर्टिकुलर रिसर्च में आपको क्या टर्म मेंशन करनी है, आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। एंड अगर आप एक मॉडल बिल्ड कर रहे हैं बाय द चांस, सो आपका डेटा इतना बड़ा होना चाहिए, आपका डेटा सेट इतना एक्यूरेट होना चाहिए कि वो क्वेश्चंस को मैच कर पाए, हेलुसिनेशन नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसे टर्म जो कि हेल्प कर रहे हैं। सो बेसिकली जो मॉडल्स बनते हैं उसके अंदर कुछ टर्म्स यूज होती है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया यूथ्रेटिक। इट्स अ टर्म जो हेलुसिनेशंस से जो आंसर्स आते हैं उसको बाईपास करने के लिए होती है। जब भी आप कोई क्वेश्चन चैटजीपीटी को पूछ रहे हैं या जेमिनी को पूछ रहे हैं, आप इस वर्ड को मेंशन करिए, ये जो भी स्टोरीज होंगी जो ये इससे बनाते हैं उनको बाईपास कर देगा, आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल एंड रियल वर्ल्ड आंसर्स देगा बस। हो सर। Any other question from the audience? भाई हेलुसिनेशन के लिए जो इन्होंने वर्डिंग बोली है, एक चीट शीट है on Google, you can search it about it. ठीक है, various other चीजों के लिए Claude की, if you have heard of Claude has skills, ठीक है, तो you can make your custom skills अंदर जिसमें तुम डिफाइन कर सकते हो कि भाई I don't want those kind of stories and all, मेरे को सिर्फ facts and figures के basis पे बात करो, he will provide it, मतलब उन्होंने क्या की है, he will provide it. All right. Thank you so much, Uncle. Moving on towards the end of this session, one thing that I could take out from this, discussion is that I read this line somewhere which said that AI cannot replace the art. It can definitely replace the artist. So yeah, on that note, I'd like to play the game in form.scanimart.com. ठीक है, मजा आएगा। और स्कैनिमार्ट में अगर तुम लोग गेम जीत जाते हो, if you are able to crack it, you will get up to Scanimart app पे you will get up to 750 rupees of cashback. So Scanimart अभी दिल्ली NCR रीजन में सितंबर will be like 750 रुपए आराम से मेरी कंपनी को पूछ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।